Hello students. So today we are going to discuss about regulation of CDK cyclin activity. So in the last lecture we have studied about cyclin and cyclin dependent kinase and how those cyclin and cyclin dependent kinase are responsible for the progression of cell cycle from one phase to another phase. So we have learned about what is cyclin and how it form a complex with cyclin dependent kinase and how cyclin dependent kinase phosphorylate the other target proteins so that the target proteins gets activated or gets inactivated and the cell will progress from one phase to another phase. So today we are going to discuss about how those cyclin CDK complex is regulated, how or we can simply say that how those cell cycle is progress in a regulated manner. So actually the cyclin and cyclin dependent kinase is regulated so that the cell cycle also progress in a regulated manner. Okay. सो आज हम देखेंगे कि कैसे साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को रेगुलेट किया जाता है. तो मेनली देयर आर फोर मैकेनिज्म थ्रू विच द साइक्लिन एंड CDK complex is regulated. Okay, so here in the diagram we can see that there are four mechanisms through which the cyclin CDK complex is regulated. The first is the association with cyclin. So I've already told you that cyclin is important for the activation of CDK. Okay, I have taken the example of the driver in bus in the last lecture, that if the driver is present then the bus will move from one place to another. If the driver is absent then the bus cannot move. So in this case cyclin is very important for the activation of CDK. Okay, we will discuss in later. Then second is the activating phosphorylation of threonine around position 160. Okay, so there is a I have told you in the last lecture that there is a T loop in the CDK in which there is a amino acid, that is the threonine. Okay, so the phosphorylation of threonine is important for the activation. Then the third is the inhibitory phosphorylation of threonine at and tyrosine at position 14 and 15. When these two amino acids get phosphorylated, then the CDK will get inactivated or inhibited. Then the fourth one and the last one is the association with CDK inhibitors. Okay, when the CDKs bind with, or we can simply say that when the CDK inhibitors, okay, that is the CDK inhibitors binds with the CDK cyclin complex, then this CK inhibitors or CDK inhibitors inhibit the cyclin dependent kinase and the cyclin dependent kinase cyclin complex will become inactivated. Okay, so these are the four mechanisms through which the cyclin CDK complex is regulated. Okay, so we will discuss one by one. So the first mechanism through which the cyclin CDK complex is regulated is the association of cyclin with cyclin dependent kinase. Okay, so this is the first mechanism through which the cyclin is cyclin dependent kinase is activated. So मैंने आपको पहले ही बताया था, I have already told you that the concentration of cyclin is not uniform in the cell cycle. That means sometimes it increase, sometimes it decrease. So there are different types of cyclin which increases in some phases of cell cycle, and there are some cyclins which increases in some phase of cycle. For example, let us take an example of G1 cyclin, that is
साइक्लिन D, okay, and CDK4/6. So this cyclin D concentration get increases in the G1 phase. Okay, तो G1 फेज में क्या होता है, ये साइक्लिन डी का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो CDK है इट्स कंसंट्रेशन इज ऑलवेज यूनिफॉर्म, ठीक है। तो वो थ्रू आउट द सेल साइकिल, चाहे वो G1 फेज हो या S फेज हो या G2 फेज हो, इसका कंसंट्रेशन, इसका लेवल क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है या यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जो साइक्लिन है इट विल फॉर्म एंड इट विल डिग्रेड। तो ये जो साइक्लिन है वो फॉर्म होता है और डिग्रेड होता है, और CDK का क्या है, वो ऑलरेडी सेल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वो एक बार फॉर्म हुआ तो वो डिग्रेड नहीं होता है, ठीक है। वो सिर्फ एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होता है, ठीक है। बट साइक्लिन का क्या है कि वो फॉर्म होते हैं न्यूली फॉर्म, देन इट विल अगेन डिग्रेड जब इनका काम हो गया। फॉर एग्जांपल साइक्लिन डी की हम बात करेंगे तो G1 फेज में वो फॉर्म होते हैं, जैसे ही G1 फेज ख़त्म होगा देन उनका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, देन इट विल डिग्रेड एंड नाउ द G1 या और द S फेज साइक्लिन विल फॉर्म देयर, दैट इज़ द साइक्लिन E, ठीक है। तो अब साइक्लिन E फॉर्म होगा और साइक्लिन डी का क्या होगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, ठीक है। और जो G1 फेज के CDK और साइक्लिन थे वो भी क्या हो जाएंगे, जब साइक्लिन नहीं होगा तो CDK इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि साइक्लिन फॉर्म होते हैं और डिग्रेड होते हैं, और वो साइक्लिन जब CDK के साथ बाइंड होगा, जब साइक्लिन CDK कम्प्लेक्स फॉर्म होंगे देन दे विल गेट एक्टिवेटेड, देन द साइक्लिन विल एक्टिवेट द CDK and this CDK will gets activated and it further phosphorylate the target protein, ठीक है। तो पहला जो मैकेनिज़्म है ये है कि जो साइक्लिन है उसका बाइंड होना किसके साथ, CDK के साथ, या हम सिंपली बोल सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स ऑफ साइक्लिन विथ CDK इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिविटी ऑफ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। जब तक साइक्लिन बाइंड नहीं होगा तब तक CDK एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो CDK के एक्टिवेशन के लिए या उसकी एक्टिविटी के लिए सबसे पहले साइक्लिन का बाइंड होना इंपॉर्टेंट है। तो एक बस को चलाने के लिए ड्राइवर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब वहाँ पे ड्राइवर होगा तभी वहाँ पे बस चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप बस को श्रीनगर जाना है कि ले जाना है कि दिल्ली जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ड्राइवर का होना इंपॉर्टेंट है एक बस को मूव करने के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट a cyclin will bind to a cyclin dependent kinase so that the cyclin dependent kinase cyclin complex will get activated। मैंने आपको पहले बताया था कि cyclin dependent kinase के पास एक cyclin binding motif रहता है या डोमेन रहता है। जब ये cyclin इसके साथ बाइंड होता है तो इस cyclin dependent kinase में ऐसे कुछ एक्टिव साइट्स या ऐसे एक्टिव साइट्स फॉर्म हो जाते हैं, या उसका ऐसा कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है कि जो ATP हाइड्रोलाइजिंग साइट है, ठीक है, जो ATP हाइड्रोलाइज करता है या जो CDK दूसरे टारगेट प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करता है, तो वो साइट क्या हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से ये CDK है वो दूसरे जो टारगेट प्रोटीन्स हैं उनको फॉस्फोराइलेट कर पाता है। तो जब तक ये एक्टिव साइट्स अवेलेबल नहीं होंगे तब तक टारगेट प्रोटीन्स को ये CDK फॉस्फोराइलेट नहीं कर पाएगा। तो जब साइक्लिन यहाँ बाइंड होगा तो ये CDK उन पर्टिकुलर टारगेट साइट्स को एक्सपोज कर देगा। जब वो एक्सपोज होगा तभी वो टारगेट प्रोटीन वहाँ पे आके बाइंड हो जाएंगे, देन वहाँ पे उन टारगेट प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन होगा। तो जो पहला मैकेनिज्म है इट इज़ द एसोसिएशन ऑफ साइक्लिन विथ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ठीक है। तो डिफरेंट साइक्लिन डिफरेंट फेजेस में फॉर्म होते हैं। जैसे मैंने आपको लास्टली बताया था कि जो साइक्लिन 1 है, जो CDK साइक्लिन D है इट इज़ फॉर्म्ड इन G1 फेज, देन उसके बाद साइक्लिन E है इट इज़ फॉर्म्ड इन द रिस्ट्रिक्शन फेज टू G1 टू रिस्ट्रिक्शन फेज, देन उसके बाद CDK टू साइक्लिन ए कम्प्लेक्स है वो एस फेज को कंप्लीट कराता है, देन उसके बाद CDK1 साइक्लिन ए है जो G2 से M फेज के पास लेके जाता है, देन फाइनली CDK
वन और साइक्लिन बी है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, एम फेज में फॉर्म होता है, तो वो एम फेज को कंप्लीट कराता है, ठीक है। तो उसके बाद कंप्लीट कराने के बाद फिर से ये साइक्लिन जो बी है वो डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। जैसे ही वो डिग्रेड हो जाएगा तो ये सी डी के ऑटोमेटिकली इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला मैकेनिज्म है थ्रू विच द साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इज रेगुलेटेड, और द साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंड साइक्लिन complex is regulated. Okay, so the second phase is the second mechanism through which cyclin dependent kinase complex is regulated is the activating phosphorylation of threonine around position 160. देन जैसे ही ये साइक्लिन बाइंड होगा तो ये सीडीके में मैंने आपको बताया था, एक तो वो जो एक्टिव साइट्स है जो टारगेट प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करता है, या जो एटीपी हाइड्रोलाइजिंग साइट है वो क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है। तो उसी के साथ साथ वहाँ पे उसी एक्टिव साइट में एक टायरोसिन अमाइनो एसिड रेजिड्यू प्रेजेंट रहता है, टायरोसिन अमाइनो एसिड रेजिड्यू, ठीक है। तो वो साथ में क्या करता है, ब्लॉक करके रखता है किसको, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगा ऐसे एग्जांपल के लिए है, ठीक है। तो ये दिस इज अ टायरोसिन रेजिड्यू, तो वो एटीपी को यहाँ इस साइड पे बाइंड होने से रोकता है, ठीक है। तो इस टायरोसिन का फॉस्फोराइलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इस टायरोसिन का फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तब तक ये जो साइक्लिन है वो एक्टिवेट नहीं होगा, सॉरी टायरोसिन नहीं, थ्रियोनिन, ओके, थ्रियोनिन, ठीक है। तो जब तक ये थ्रियोनिन का एक्टिवेशन नहीं होगा तब तक, या इसका फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तब तक ये जो एटीपी हाइड्रोलाइजिंग साइट है किसके पास, सीडीके के पास, वो एक्सपोज नहीं होगा। तो इसका एक्सपोज होना इंपॉर्टेंट है ताकि वो ये सीडीके एक्टिवेट हो जाए। तो इसके एक्टिवेशन के लिए पहले थ्रियोनिन का फॉस्फोराइलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो थ्रियोनिन है वो कहाँ प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द 160 पोजीशन, ठीक है। तो अगर हम, आपको पता है सीडीके इज अ एंजाइम, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। तो एक एक करके अमीनो एसिड वहाँ पे बाइंड होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो वहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होता है, फिर वो पॉलीपेप्टाइड चेन के बाद वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन टर्शियरी स्ट्रक्चर, फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ऐसे फॉर्म करने के बाद फाइनली वो एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, उसका फोल्डिंग, प्रोटीन फोल्डिंग होता है। देन इसी तरह से हम अगर अमीनो एसिड की बात करेंगे तो अगर हम ऐसे काउंट करेंगे तो जो 160 पोजीशन है वहाँ पे आपका अमीनो एसिड थ्रियोनिन प्रेजेंट है, जो क्या करता है, इस एटीपी हाइड्रोलाइजिंग साइट को ब्लॉक करके रखता है, ठीक है। तो जब इस थ्रियोनिन का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है तो वो उस एटीपी हाइड्रोलाइजिंग साइट से हट जाता है, ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाता है और वो उस हाइड्रोलाइजिंग साइट को एक्सपोज कर देता है ताकि वहाँ पे एटीपी आके बाइंड हो जाए, ठीक है, और ये सीडीके एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। तो जब इस थ्रियोनिन का फॉस्फोराइलेशन होगा सो दिस सीडीके साइक्लिन विल गेट्स एक्टिवेटेड। अगर हम यहाँ पे थ्रियोनिन बात करेंगे, अगर थ्रियोनिन का साइक्लिन सीडीके कम्प्लेक्स, ठीक है, यहाँ पे थ्रियोनिन प्रेजेंट है यहाँ पे 160 पोजीशन पे, ठीक है। तो अगर ये इस फॉर्म में होगा तो दिस सीडीके इज इनएक्टिवेट, ठीक है। तो जब इसका फॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक है, तो किसका, थ्रियोनिन 161 का, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होने से तो तब ये सीडीके कम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये जो इसका फॉस्फोराइलेशन करता है वहाँ पे एक एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, सो दैट एंजाइम इज केक, दैट इज सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेस, केक, ठीक है, दैट इज द सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेस, ओके, ठीक है। तो ये सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेस क्या करता है, इस थ्रियोनिन 160 पोजीशन पे जो थ्रियोनिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट है उसको फॉस्फोराइलेट करता है ताकि इट विल गेट एक्टिवेटेड, ठीक है, ताकि जो ये टी लूप में जो टी प्रेजेंट है वो वहाँ से हट जाए, ठीक है, और ये जो एटीपी हाइड्रोलाइजिंग साइट है वो एक्सपोज हो जाए, सो दैट द सीडीके गेल एक्टिवेटेड एंड इट फर्दर एक्टिवेट्स द टारगेट प्रोटीन, या इट फर्दर फॉस्फोराइलेट द टारगेट प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये दूसरा है। तो ये जो स्केक है दैट इज द सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज
it is further made up of two it is further made up of a complex of CDK and cycline, and that CDK is CDK7 और साइक्लिन है साइक्लिन H। तो ये इन दोनों का कम्प्लेक्स है, ठीक है, CDK साइक्लिन कम्प्लेक्स। ये दोनों बाइंड होके क्या फॉर्म करते हैं, दैट इज द साइक्लिन CDK एक्टिवेटिंग काइनेज। तो केक इज द CDK एक्टिवेटिंग काइनेज। तो ये क्या करता है, ये मेनली जो थ्रियोनिन अमीनो एसिड प्रेजेंट है 160 पोजीशन पे इस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के, उसको फॉस्फोराइलेट कर देता है, एंड फाइनली दिस साइक्लिन CDK कम्प्लेक्स गेट्स एक्टिवेटेड। ठीक है, ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज द सेकेंड मैकेनिज्म थ्रू विच द साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इज रेगुलेटेड। ठीक है, उसके बाद है थर्ड। ठीक है, थर्ड आप यहाँ पे देख सकते हो, इनिबिटरी फॉस्फोराइलेशन ऑफ थ्रियोनिन एंड टायरोसिन। ठीक है, क्या है, इनिबिटरी फॉस्फोराइलेशन ऑफ थ्रियोनिन 14 एंड टायरोसिन 15। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, ठीक, clearly see in this diagram that in the CDK at the position 14 there is a threonine amino acid, okay, and at the position 15 there is a tyrosine amino acid. So if these two amino acids get phosphorylated, then the CDK will gets inactivated. So we simply say that we can say that the third mechanism is inhibitory phosphorylation of threonine 14 and tyrosine 15. Okay, if we form the diagram of cycline and cycline dependent kinase, this is the cycline and this is the CDK. So there is at the position 14 and position 15. So at the position 14 there is threonine THR, and at the position 15 there is tyrosine. Okay, so when these two amino acids, threonine and tyrosine, these two amino acids get phosphorylated, then this will causes the inactivation of cyclin dependent kinase cyclin कम्प्लेक्स। तो जब इन दो अमीनो एसिड्स का जो पोजीशन नंबर 14 और पोजीशन नंबर 15 पे प्रेजेंट है सीडी के जो प्रोटीन के, ठीक है, तो जब इनका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो ये क्या करते हैं, ये इस सीडी के कम्प्लेक्स को इनएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। तो अगर हम एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा था कि जो 160 पोजीशन पे थ्रियोनिन था, अगर इसका फॉस्फोराइलेशन हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, तो इसका फॉस्फोराइलेशन होने से ये जो हमारा साइक्लिन सीडीके कम्प्लेक्स है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जब उसी के साथ साथ फिर जब इसका फॉस्फोराइलेशन होगा, किसका, जो 14 और 15 पे जो थ्रियोनिन और टायरोसिन है, जब इसका फॉस्फोराइलेशन होगा तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे ये जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो पहले एक्टिवेट था, या हम सिंपली बोलेंगे तो एक्टिवेट था, वो इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, it gets inactivated. So if these two positions are phosphorylated, then this cyclin CDK complex will become inactivated. So this phosphorylation of 14
and 15 amino acid, that is the threonine and tyrosine, is carried out by a protein और एंजाइम, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम है V1 प्रोटीन, ठीक है, क्या है, V1 प्रोटीन. So their phosphorylation is carried out by the V1 protein kinase. So this V1 protein kinase phosphorylate the CDK at position number 14 and 15. V1 protein kinase. So this V1 protein kinase phosphorylate this tyrosine, threonine 14 and tyrosine 15, these two amino acids, so that this will cause the inactivation of the CDK complex. Okay, so before there, when there is the phosphorylation of 160 threonine, so this cyclin CDK, it will be in एक्टिवेटेड फॉर्म, ठीक है, तो तब वो एक्टिवेटेड फॉर्म में होंगे जब सिर्फ थ्रियोनिन 160 का फॉस्फोराइलेशन होगा, जो हमने पढ़ा था कि CAK1 ने किया था, जब वो इस शेप में या इस फॉर्म में होगा, साइक्लिन along with द फॉस्फोराइलेशन ऑफ 160 थ्रियोनिन, सो हम बोलेंगे तब ये साइक्लिन CDK कम्प्लेक्स क्या है, फुल्ली एक्टिवेटेड है, ठीक है. जब V1 प्रोटीन फिर उसी साइक्लिन CDK कम्प्लेक्स को फॉस्फोराइलेट करता है, कहाँ पे, 14 और 15 नंबर अमीनो एसिड पे. तो 14 पे हमने बताया कि थ्रियोनिन आता है, 15 पे टायरोसिन आता है. तो जब इन दो अमीनो एसिड का फॉस्फोराइलेशन होता है तो वही जो एक्टिवेटेड CDK साइक्लिन कम्प्लेक्स था वो क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है. तो इट गेट्स इनएक्टिवेटेड. तो यह हम सिंपली बोल सकते हैं, अगर जब हम उसका अब रेगुलेशन देखेंगे, जब हम उसका फुल्ली डायग्राम देखेंगे, तो पहले ये इसका फॉस्फोराइलेशन और इसका फॉस्फोराइलेशन साथ साथ में होता है, तो जिसके वजह से जो साइक्लिन CDK कम्प्लेक्स बनते ही इनएक्टिवेट हो जाता है. तो उसके बाद ये जो दो पोजीशन पे 14 और 15 है, इसको और एक प्रोटीन या एंजाइम है, ये इस दो फॉस्फोराइलेशन को रिमूव करता है. तो उस रिमूव करने वाले एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, CDC25 फॉस्फेटेस, ठीक है. जो ये CDC25 फॉस्फेटेस है वो क्या करता है, इस दो अमीनो एसिड को रिमूव करता है. रिमूव करने के बाद डिफॉस्फोराइलेट करता है, या हम रिमूव बोल सकते हैं, डिफॉस्फोराइलेट करता है. जब ये डिफॉस्फोराइलेट हो जाएगा तो वहाँ पे सिर्फ आपको एक ही पोजीशन पे आपको फॉस्फोराइलेशन दिखेगा, दैट इज़ द थ्रियोनिन नंबर 160, ठीक है. तो जब 160 पे ही फॉस्फोराइलेशन रहे, क्योंकि देखो ये जो CDC25 वो नंबरिंग वाइज क्या करता है, डिफॉस्फोराइलेशन करता है. तो पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 नंबर अमीनो एसिड से, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर. तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 14 और 15. तो जब इनका पहले फॉस्फोराइलेशन होगा तो ये जो 160 पे थ्रियोनिन अमीनो एसिड प्रेजेंट है, तो वहाँ पहुँचते तक उसको बहुत टाइम लग जाता है. तो तब तक ये जो CDK साइक्लिन कम्प्लेक्स है वो एक्टिवेट रहता है, ठीक है. तो जैसे ही एक्टिवेट रहेगा, तो जब फाइनली वो जो CDC25 है वो इसको भी रिमूव कर देगा, तो तब जाके ये फिर से साइक्लिन CDK कम्प्लेक्स इन एक्टिवेट हो जाएगा. तो फिलहाल आप इतना ही याद रखो कि जो थर्ड जो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू साइक्लिन और CDK कम्प्लेक्स इनएक्टिवेट होता है वो है, दैट इज़ द इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन ऑफ थ्रियोनिन 14 एंड टायरोसिन 15 बाय विच प्रोटीन, दैट इज़ द V1 प्रोटीन काइनेज. आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, ठीक है. तो आप या बुक में भी देख सकते हैं, दैट इज़ द कूपर के बुक में पेज नंबर 661 पे, ठीक है. कूपर के बुक में आप देख सकते हैं 661 पेज नंबर पे, तो वहाँ पे भी आपको ये मिलेगा. अब उसके बाद है फोर्थ वन, जो चौथा है, दैट इज़ द एसोसिएशन विथ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर्स,
तो वहाँ पे कुछ इनहिबिटर्स रहते हैं, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, दिस इज़ द इनहिबिटर। तो जब वो इनहिबिटर इस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के साथ बाइंड होता है तो वो जो साइक्लिन सीडीके कम्प्लेक्स है इट्स गेट इनएक्टिवेटेड। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ इनहिबिटर्स है जो इनहिबिट करता है किसके एक्टिविटी को, दैट इज़ द साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के एक्टिविटी को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं द फोर्थ मैकेनिज्म दैट इज़ द एसोसिएशन with association with cyclin dependent kinase inhibitors, that is CKIs। ठीक है, तो ये इनहिबिटर्स के साथ जब बाइंड होता है कौन सा, ये साइक्लिन सीडीके कम्प्लेक्स। ठीक है, साइक्लिन सीडीके कम्प्लेक्स जब इन इनहिबिटर्स के साथ, दिस आर इनहिबिटर्स CKIs। ठीक है, तो जब इस पे बाइंड होगा ये साइक्लिन और सीडीके कम्प्लेक्स के साथ, तो वहाँ पे क्या होगा, दिस साइक्लिन विल गेट इन एक्टिवेटेड। ये जो कम्प्लेक्स है साइक्लिन और सीडीके का, वो क्या हो जाता है, इन एक्टिवेट हो जाता है। तो द अनदर regulation is this, that when these CKIs, that is the cyclin dependent kinase inhibitor, bind to these CDKs, तो it will gets inactivated। ठीक है, तो inhibitors हम बोल सकते हैं, inactivators भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सो अगर हम मैमल्स की बात करेंगे तो मैमल्स में CDK इनहिबिटर्स के दो फैमिलीज प्रेजेंट है। ठीक है, देयर आर टू फैमिलीज ऑफ CDK, टू फैमिलीज ऑफ CDK इनहिबिटर्स, हम CKIs बोल सकते हैं इन मैमल्स। ठीक है, ठीक है, इन मैमल या मेमेलियन सेल्स। ठीक है, तो ये दो जो फैमिली है, दीज आर, पहला एक को हम बोलते हैं इंक 4 फैमिली। ठीक है, एक है इंक 4 फैमिली और दूसरा है किप या किप family. So these are two family of CDK inhibitors which are present in mammalian cell and which inactivate the cyclin dependent kinases। ठीक है, तो द इंक फैमिली, अगर हम इंक फैमिली की बात करेंगे तो द इंक 4 फैमिली मेनली binds with the monomers। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, द मोनोमर्स ऑफ CDK 4 एंड CDK 6। ठीक है, तो ये मेनली किसके साथ बाइंड होता है, जो इंक फैमिली CDK 4 और CDK 6 के साथ बाइंड होता है और उसको इनएक्टिवेट करता है। और मैंने यहाँ पे एक मेंशन किया मोनोमर। मोनोमर मीन्स जब ये साइक्लिन CDK कम्प्लेक्स प्रेजेंट हो, जो साइक्लिन है CDK वो सिंगल ही प्रेजेंट होंगे तभी वो इसके साथ बाइंड हो पाते हैं। अगर वो साइक्लिन के साथ कम्प्लेक्स फॉर्म किया होगा तो तब ये इंक फैमिली इसके साथ बाइंड नहीं हो पाता है। तो ये तभी बाइंड होगा जब यहाँ पे साइक्लिन नहीं होगा, सिर्फ CDK 4 या CDK 6 सिंगल ही मोनोमरिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तभी जाके ये जो इंक फैमिली है, इंक फैमिली, वो इसके साथ बाइंड हो पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंक 4 फैमिली है इट इनएक्टिवेट्स, या हम सिंपली बोल सकते हैं इट इनहिबिट्स द सेल साइकिल प्रोग्रेशन थ्रू G1 फेज। इनहिबिट्स प्रोग्रेशन थ्रू G1। ठीक है,
तो ये जो इंक 4 फैमिली है वो क्या करता है, क्योंकि जो CDK4 और CDK6 कहाँ प्रेजेंट होता है, सिर्फ G1 फेज के साइक्लिन CDK से, ठीक है। तो जब ये इनके साथ बाइंड होगा तो इसका मतलब ये है कि जो सेल साइकिल है वो उसको जो ये इंक फैमिली है वो सेल साइकिल को G1 में रोक देगा, ठीक है। तो वो G1 सेल उस G1 फेज को क्रॉस नहीं कर पाएगा। जब तक ये दोनों यहाँ से हटेंगे नहीं तब तक सेल G1 फेज में ही रहेगा, G1 फेज को क्रॉस नहीं करेगा और S फेज में एंटर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर हम इंक 4 फैमिली की बात करेंगे तो इसमें जो मेंबर्स आते हैं वो है, इसमें डिफरेंट मेंबर्स हैं इस इंक 4 फैमिली के। तो उसमें आते हैं P15, P16, P18 और P19। तो ये 4 प्रोटीन्स हैं जो इंक 4 फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड दीज 4 प्रोटीन्स ब्लॉक्स और इनहिबिट्स द CDK4 और इधर CDK6, ठीक है, इन G1 फेज। तो हम सिंपली बोल सकते हैं, अगर हम इसका वो देखेंगे, अगर हम इसका चार्ट बनाएंगे, सिंपली आप चार्ट ऐसे बनाएंगे तो फॉर एग्जांपल देखो, हम यहाँ पे इनहिबिटर लिखेंगे, इनहिबिटर में हम इंक 4 फैमिली की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप P15, P16, P18 और P19 आप यहाँ बना सकते हो। देन इसके बाद CDK या CDK साइक्लिन कम्प्लेक्स की हम बात करेंगे, तो वो कौन से CDK साइक्लिन कम्प्लेक्स को इनिबिट करता है, तो ये अभी मैंने आपको बताया CDK6 और CDK4, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो कौन सा सेल साइकिल फेज इफेक्टेड होगा, दैट इज़ द G1 फेज, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे दैट इज़ द सेकेंड फैमिली, दैट इज़ द CIP और किप फैमिली, दैट इज़ द साइक्लिन इनिबिटर प्रोटीन या काइनेज इनिबिटर प्रोटीन। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। तो जो ये CIP फैमिली है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, जो किप फैमिली है या CIP फैमिली है, ठीक है। तो ये मेनली जो साइक्लिन CDK कम्प्लेक्स है, ठीक है, उनके साथ बाइंड होता है। तो मेनली ये किसके साथ बाइंड होगा, दैट इज CDK2 और CDK1 के साथ, ठीक है। बट मैंने पहले आपको बताया कि जो इंक फैमिली है वो सिर्फ मोनोमरिक फॉर्म में बाइंड होगा, बट ये किप और किप फैमिली मोनोमरिक फॉर्म में बाइंड, जो ये अगर उन्होंने कम्प्लेक्स फॉर्म भी बनाया होगा तो उसके साथ बाइंड होगा। फॉर एग्जांपल CDK2 किस किस के साथ कम्प्लेक्स फॉर्म करता है, दैट इज CDK2 साइक्लिन A, CDK2 साइक्लिन E, CDK1 की बात करेंगे तो CDK1 और साइक्लिन A, CDK1 और साइक्लिन B। तो ये जो ये किप फैमिली है ये इन चारों CDK साइक्लिन कम्प्लेक्स के साथ बाइंड होता है, ठीक है। और इन जो कम्प्लेक्स है इनको क्या करता है, वो इन एक्टिवेट या इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो इन चारों कम्प्लेक्स को वो या तो इनएक्टिवेट करता है या तो इनको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो चाहे वो कम्प्लेक्स फॉर्म में हो, तो अभी ऐसा भी माना जाता है कि जो किप या CIP फैमिली है वो CDK4 और CDK6 जो कम्प्लेक्स है किसके साथ, साइक्लिन D के साथ, इसको भी वो इनिबिट करता है, ठीक है। तो ये अभी रिसर्च में है, ठीक है। तो अभी इसका प्रूफ नहीं है, फिर भी वो ऐसे बुक में लिखा हुआ है कि ये इसको भी, जो ये कम्प्लेक्स है इसको भी इनिबिट करता है। कौन, ये जो किप फैमिली इनिबिटर्स है वो इन चारों को तो करता है, इनके साथ साथ इसको भी करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों, देखो ये हमें पता है CDK2 साइक्लिन A कौन से फेस का साइक्लिन है, दैट इज़ द S फेस का साइक्लिन है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे CDK2 साइक्लिन E, तो ये है G1 फेस का साइक्लिन, ठीक है। मैंने जो G1 S फेस का जो ट्रांजिशन फेज है उसका साइक्लिन है। देन अगर हम बात करेंगे CDK1 और साइक्लिन A की,
तो ये G2 फेज़ का साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स है। अगर हम ये इसकी बात करेंगे, MPF की बात करेंगे, तो ये M फेज़ का साइक्लिन है, ठीक है। या हम सिंपली बोल सकते हैं G2 या M फेज़ जो ट्रांजिशन है उसका साइक्लिन है। तो इसका मतलब ये है। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो दिस इज़ G1 साइक्लिन। तो ये जो किप या किप फैमिली है, तो ये अल्टीमेटली जि चारों फेजेस में G1 टू S फेज़, M फेज़ और G2 और GM फेज़, तो ये जितने भी फेजेस है उन सब पे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। और ये अगर ये इन सारे साइक्लिन्स को इनएक्टिवेट कर सकता है और सेल साइकिल को इनमें से किसी भी फेज़ में रोक सकता है। इसके पास वो कैपेबिलिटी है कि इन साइक्लिन्स को या इन सीडीकेस को या उस सेल को डिफरेंट फेजेस में वो रोक के रख सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले इसका बनाया था यहाँ पे डायग्राम, तो वैसे ही हम बनाएंगे। तो जो किप फैमिली है, तो इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो उसमें P21 आता है, P27 और P57, ठीक है। तो ये इस फैमिली में बिलोंग करता है। और जो P57, P21 और P27 जो किप फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये मेनली क्या करता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो डिफरेंट साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स इनहिबिट करता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दैट इज़ द पहला साइक्लिन CDK1 एंड साइक्लिन ए। तो जो इसका पहला टारगेट है दैट इज़ द CDK1 साइक्लिन ए, वो इसको इनहिबिट कर सकता है। और ये मेनली कौन से फेस का सेल साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स है दैट इज़ द G2। उसके बाद ये CDK1 और साइक्लिन बी को दैट इनएक्टिवेट कर सकता है, दैट इज़। तो जो कौन सा फेस सेल साइकिल फेस अफेक्टेड होगा, दैट इज़ अ G2M फेस। उसके बाद CDK2 और साइक्लिन ए को भी ये इनहिबिट कर सकता है, तो ये मेनली एस फेस का साइक्लिन है। देन उसके बाद CDK2 और साइक्लिन ई को भी वो एक्टिवेट कर सकता है, इनएक्टिवेट कर सकता है, दैट इज़ द G1 टू S ट्रांजिशन, ठीक है। तो इस फेज़ का वो सेल साइकिल है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि वो CDK4 और CDK6 को भी इनएक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस पे अभी प्रॉपर प्रूफ नहीं है, स्टिल दे आर इन कंफर्मेशन, ठीक है। तो रिसर्च में चल रहा है। तो ये तो इसका मतलब ये है कि जो CIP फैमिली एंड किप फैमिली है, इट इनएक्टिवेट्स द cell cycle in different or inhibits the cell cycle in different phases of cell cycle, या inhibit the cell in different phases of cell cycle, that is G2 phase, G2 to M transition phase, then S phase and G1 S transition. So अगर आपको क्वेश्चन आया कि किप फैमिली कौन से फेजेस में सेल को रोक सकता है, तो आप वहाँ पे सिंपल लिख सकते हो G2 टू M ट्रांजिशन S और G1 से S ट्रांजिशन, मीन्स जितने भी सेल फेजेस के फेजेस हैं उन सब में ये जो किप फैमिली है वो उसको इनहिबिट कर सकता है। तो वहाँ पे और एक भी और एक इनहिबिटर, ऑल देयर इज ऑल्सो प्रेजेंट अनदर इनहिबिटर दैट इज द P53 विच इज़ एन ट्यूमर सप्रेसर जीन, ट्यूमर suppressor gene. Sometimes these inhibitors are also gets activated and it inhibits the cell cycle. तो जब हम पढ़ेंगे कौन सा सेल साइकिल चेक पॉइंट्स, तो आपको वहाँ पे इस P53 का रोल पता चल जाएगा। तो ये P53 भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि इसमें सेल साइकिल अरेस्ट में, ठीक है। तो मेनली वो सेल साइकिल को अरेस्ट करता है और सेल को आगे मूव होने से, दूसरे फेस में प्रोग्रेस होने से रोकता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको नाम से पता चला ट्यूमर सप्रेसर जीन, तो वो सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट होने से रोकता है, ठीक है। सो ये चौथा मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू जो हमारा साइक्लिन और CDK कॉम्प्लेक्स है इट इज़ रेगुलेटेड। सो दीज आर द 4 मैकेनिज़्म थ्रू विच द सेल साइकिल और द साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स इज़ रेगुलेटेड। इफ़ वी लुक एट दिस डायग्राम, ठीक है, तो ये आपको कूपर के बुक पे पेज नंबर 661 पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपके नोट्स में भी ये बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर हम एक साइक्लिन का जर्नी देखेंगे, तो सबसे पहले साइक्लिन फॉर्म होता है, दैट इज़ द सिंथेसिस ऑफ साइक्लिन। देन आफ्टर सिंथेसिस ऑफ साइक्लिन,
तो यहाँ पे जो CDK है वो CDK और साइक्लिन बाइंड होता है और वहाँ पे कम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ वाइट कलर में डॉट्स दिखेंगे, तो दिस इज़ द पोजीशन ऑफ द डिफरेंट अमीनो एसिड्स, ठीक है। दिस इज़ द 14 अमीनो एसिड, दिस इज़ द 15 अमीनो एसिड्स, दिस इज़ द 160 अमीनो एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है साइक्लिन CDK कम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, तो पहला है साइक्लिन और CDK का बाइंड होना, ठीक है। तो पहले साइक्लिन का सिंथेसिस होगा, उसके बाद साइक्लिन सिंथेसिस होने के बाद CDK के साथ बाइंड होगा, तो वहाँ पे वो कम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। देन उसके बाद उनका फॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक है। तो फॉस्फोराइलेशन में हमको पता है पोजीशन नंबर 14 का भी फॉस्फोराइलेशन होगा, पोजीशन नंबर 15 का भी फॉस्फोराइलेशन होगा, देन पोजीशन नंबर 16 का भी फॉस्फोराइलेशन होगा। तो ये जो दो फॉस्फोराइलेशन है 14 और 15, ये करता है कौन? V1 प्रोटीन, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो इसका फॉस्फोराइलेशन कौन करता है? V1 प्रोटीन। V1 प्रोटीन क्या करता है? इस 14 और 15 का फॉस्फोराइलेशन करता है, और 161 का फॉस्फोराइलेशन कौन करता है? दैट इज़ द CAK कैक 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाया होगा, दैट इज़ द कैक 1, यहाँ पे मैं खुद लिख देता हूँ, ठीक है। कैक 1 विच इज़ मेड अप ऑफ CDK 7 एंड साइक्लिन H। तो ये जो कम्प्लेक्स है कैक, वो क्या करता है? दैट इज अ साइक्लिन एक्टिवेटिंग काइनेज। तो वो क्या करता है? इस 161 पोजीशन पे उसको फॉस्फाइलेट कर देता है, और थ्रियोनिन और टायरोसिन जो 14 और 15 पे है उसको फॉस्फोराइलेट कौन करता है? दैट इज द V1 प्रोटीन काइनेज। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि 160 है, तो वो अराउंड 160 था, दैट इज़ द एक्चुअल जो साइट है वो कितना है? थ्रियोनिन 161, तो वो आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। दैट इज़ द थ्रियोनिन 161, इट्स नॉट 160। तो 161 आपके नोट्स में भी मैंने 160 लिखा हुआ है, तो वैसे लिखा नहीं है, वहाँ पे अराउंड लिखा हुआ है। तो जो एक्चुअल पोजीशन है थ्रियोनिन का, दैट इज़ द 161। तो 161 पोजीशन पे जो थ्रियोनिन का फॉस्फोराइलेशन होता है, और जो 14 और 15 पे इसका फॉस्फोराइलेशन होता है, तो उस टाइम पे अब देखो ये मेनली एक्टिवेटिंग फॉस्फोराइलेशन है, और ये क्या है? डीएक्टिवेटिंग फॉस्फोराइलेशन है। तो जब वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होगा, तीनों का साथ में होता है, तो पहले थ्रियोनिन का होगा, पहले इसका होता है, देन उसके बाद इसका फॉस्फोराइलेशन होता है। तो वो पहले एक्टिवेट होने से पहले ही वो इनएक्टिवेट चला हो जाता है, ठीक है, साइक्लिन CDK कम्प्लेक्स। देन उसके बाद उनका डीफॉस्फोराइलेशन होता है। डीफॉस्फोराइलेशन करता है कौन है? CDC25, ठीक है। तो CDC25 क्या करता है? डीफॉस्फोराइलेशन करता है। तो मेनली वो नंबर 1 अमीनो एसिड से डीफॉस्फोराइलेशन करते आता है, ठीक है। तो 1 पे तो है नहीं फॉस्फेट ग्रुप, तो वो अमीनो एसिड 1 से चेक करता है कि 1 पे तो फॉस्फोराइलेशन नहीं है, 2 पे तो नहीं है, 3 पे तो नहीं है। तो ऐसे ऐसे करते करते तो सबसे पहले उनका जो इंटरेक्शन होता है, तो वो किसके साथ होता है? दैट इज़ थ्रियोनिन नंबर 14, देन उसके बाद टायरोसिन नंबर 15, जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट था। तो वो जो CDC28 है, CDC28, तो सबसे पहले वो इस 14 वाले को हटाता है, इसको डिफॉस्फोराइलेट करता है, फिर इसको डिफॉस्फोराइलेट करता है। जब ये दोनों डिफॉस्फोराइलेट हो जाएंगे, तो ये जो साइक्लिन CDK कम्प्लेक्स है, इट गेट्स एक्टिवेटेड। यहाँ पे आप देखो, ये जो दो पोजीशन पे है वो फॉस्फेट हट गया है, ठीक है। कौन हटाता है? CDC25, ठीक है। तो जैसे CDC25 इसको हटा देता है, CDC25 इसको हटा देता है, तो मैं यहाँ पे क्या होता है? CDC25 इसको हटा देता है, तो ये जो साइक्लिन CDK कम्प्लेक्स है, इट गेट्स एक्टिवेटेड, ठीक है। ये क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। देन उसके बाद जो भी उसका फंक्शन होगा, ठीक है, दैट इज़ द, यहाँ पे उन्होंने साइक्लिन B और CDK 1 की एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये मेनली कौन से फेज़ का है? दैट इज़ द M फेज़ का है। तो ये जब एक्टिवेट होंगे, तो वो उस सेल का माइटोसिस कंप्लीट कराएंगे। जैसे माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद जो साइक्लिन है, ठीक है, वो डिग्रेड हो जाता है वहाँ से, ठीक है। तो वहाँ पे जो कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं जो इनका डिग्रेडेशन करता है, ठीक है, जैसे कि APC है, दैट इज़ द एनाफेज प्रमोटिंग कम्प्लेक्स, ठीक है। APC क्या करता है? साइक्लिन B को डिग्रेड कर देता है। जो जब साइक्लिन B डिग्रेड हो जाएगा, तो ये जो हमारा CDK है, वो साइक्लिन B से अलग हो जाएगा। जैसे साइक्लिन B से अलग हो जाएगा, तो ये इट विल बिकम इनएक्टिवेट। तो ये फिर से क्या हो जाता है? इनएक्टिवेट हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे स्टिल द 160 पोजीशन इज फॉस्फोराइलेटेड, तो वो क्या करता है? इसको फॉस्फाइलेट कर देता है, ठीक है, डिफॉस्फाइलेट कर देता है। कौन? मैंने आपको बताया था, दैट इज़ द अगेन CDC25। अब CDC25 धीरे धीरे पहुंचता है कहाँ पे? जो अमाइनो एसिड नंबर 140
161 पे, ठीक है। देन उसका इसको यहाँ से फॉस्फेट थ्रेओनिन 161 से हटा देता है एंड इट विल बिकम डीफॉस्फोराइलेटेड, ठीक है। तो वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है ताकि वो नेक्स्ट साइक्लिन के साथ बाइंड होके तो और एक जो साइकिल है वो कंप्लीट कर सके, ठीक है। सो इन दिस वे द होल साइक्लिन सीडीके कम्प्लेक्स इज कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड, ठीक है। तो हमने देखा कि डिफरेंट पाथ वो थे, वेज थे जिसके थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म थे जिसके थ्रू all these cyclin and CDK complex are regulated. So the first is the we can repeat one time, ठीक है, that is the association with cyclines. This is the first mechanism. The second mechanism is activating phosphorylation of threonine around position 160, that is the 161 threonine. Then the third is the inhibitory phosphorylation of threonine 14 and tyrosine 15. When these two amino acids get phosphorylated, then the CDK complex gets inactivated. Then the final is the association or binding of the CDK inhibitors with the CDK. So these inhibitors ultimately inactivate that cyclin CDK complex. So we have studied there are two types of families of CDK inhibitors, that is the KIP family and INK4 family. So these family have different members, that is P16, P17, P18 and P19. Okay. Similarly, the KIP family or KIP family includes the P21, P27, P57. Okay, so these families binds with the CDK cyclin complex and inhibits those cyclin CDK complex at different stages or different phases of the cell cycle. So ultimately, when these cyclin CDK complex are regulated, so ultimately the cell cycle progression is regulated or controlled. Okay, so the cell cycle will progress in a controlled manner, in a regulated manner, and the cell divides in a regulated manner. So when these are regulated, the cell cycle is regulated. Okay, so this is all about the cyclin and cyclin this is all about the regulation of cyclin and cyclin dependent kinases. थैंक यू। सो आप क्या करो, आप नोट्स में आप देख सकते हैं, एक बार इसको पढ़ लो, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।